Very good evening to everyone. Today is the day for active trading, post-opening trade setup pages, related queries. In post-opening trade setup pages weekly, all future stocks daily key double green star. Otherwise, actually there are 38 scripts, but key high traded as well as justified good above series. So these double green star scripts are 12 scripts. Out of 148 scripts, 12 scripts are there. In that buying, 7 scripts are there. That to ICFC lower time frame uptrend and both is 7 scripts. All these 7 scripts, Bandhan Bank, Bank Nifty, Kolpal, IndusInd Bank, Maruti, Reliance and SRF. All these 7 scripts are a best buy in this week. When low time frame, first thing is it should go to live opportunity buying, so 7 scripts still remains. Then current time frame retracement, so 1 script. Maruti 15th June at 3:30 it is retraced. And low time frame resistance, the two active resistance, is nothing but accumulation. So Tuesday onwards, hereinafter, whenever low time frame trades with support, we can initiate the buying for the target of weekly RC 23.6%. So under this first option, retraces, we are having only 1 script. Now we'll go to another option. All future stocks daily key high double green star weekly. 12 scripts. Out of that, 7 scripts live opportunity buying. Now we'll check low time frame trading with support, right? So SRF is the best buy. Low time frame आज 15 जून को it is traded with re-entry into RC. तो हमने ट्रेड इनिशिएट किया होगा, but we cannot hold it because as per the execution strategy, initiate buying whenever low time frame trades then active support or fresh support, but we can hold only when low time frame need to close with fresh support in RC along with BTP and closes with PCS. तो यहाँ पे re-entry into RC तो हुआ, but fresh support in RC नहीं मिला. कल मिलेगा, परसों मिलेगा, तो हम बात तब उस समय ट्रेड करेंगे. That is so under first current time frame retraces, case study is Maruti. Low time frame trades with active support or fresh support, case study is SRF. And stop and use to buy किसी में हुआ नहीं है आज. You can see here itself. यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान लिंक के बाजू में एंड सिंबल आया हो ग्रीन कलर से, तो स्टॉप एंड यूज टू बाई will be there, but it is not there.
कहीं ना कहीं होगा। ये accumulation, initial buying when lower time frame trades with fresh support. So this will check low time frame resistance. मतलब कोलपाल, हिंदुस्तान बैंक और मारुति एंड रिलायंस, ये चारों में लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला है। इट्स नथिंग बट अक्यूमुलेशन। यहाँ से जैसे ही कल एक्टिव सपोर्ट मिले तो वी कैन इनिशिएट द बाइंग एंड फ्रेश सपोर्ट से ट्रेड करे, अपर बैंड ट्रेड करके अलोंग विद बीडीपी, तो वी कैन होल्ड इट। टुमारोज प्लान भाव अपलोड हो रहे होंगे, तो टुमारोज प्लान इज नॉट अवेलेबल। एक मिनट लीजिएगा। So this is the fourth strategy. Retraces, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसेस में मारुति है, लो टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद सपोर्ट में हमको एसआरएफ मिला, लो टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद रेजिस्टेंस में हमको 4 स्क्रिप्ट मिली, कोलपाल, हिंदुस्तान बैंक, मारुति, और जैसे सपोर्ट से चले एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो गया। और स्टॉप एंड यूज टू बाय, स्टॉप एंड यूज टू सेल एक भी नहीं है। जब स्टॉप एंड यूज टू बाय, स्टॉप एंड यूज टू सेल आने वाले दिनों में होगा, दैट आल्सो विल बी बेस्ट बाय। अल्टीमेटली हम ये 7 स्क्रिप्ट जो है, मैं चाहता हूँ कि इस वीक हम क्लोजली मॉनिटर करें और पूरा वीक मॉनिटर करें हाउ इट इज बिहेविंग irrespective of हाउ डाउ जोन्स और निफ्टी बिहेव। बट ये सातों स्क्रिप्ट में बाइंग है तो है। और ऑल वीक थ्रू द वीक हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही करेंगे। मैं लिख लेता हूँ, मे बी बंधन बैंक, बैंक निफ्टी, कोलपाल, हिंदुस्तान बैंक, मारुति, रिलायंस and SRF. Actually speaking, you know, it is not only 7 scripts. हम फ्यूचर स्टॉक्स करके अगर करते हैं तो वी आर हैविंग 38 opportunities in buying. बट फिर हमको देखना पड़ेगा कि है सामने फेस तो नहीं कर रहे हैं ना, ट्रेडेबल डिस्टेंस तो नहीं है ना, दैट आल्सो वर्क्स। बस वैलिड बाय होना चाहिए, वी शुड नॉट बी फेसिंग रिसेंट हाई एंड अकॉर्डिंग टू आरआर बाइंग होनी चाहिए। ये 38-43 रेकॉर्ड्स है, उसमें आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ 28 अपॉर्चुनिटीज आर देयर। अदरवाइज की है क्रेडिट करके हमने सिलेक्ट किया तो 7 है। अब हम वीकली ट्रेडर है लेके भेज देना है, तो 28 स्क्रिप्ट में से क्यों अपॉर्चुनिटी देखते रहे। 7 में से 3-4 भी अच्छी मिल जाएगी ड्यूरिंग द वीक तो बस है। हाँ बस एक बात है कि है ट्रेडेड वाली स्क्रिप्ट्स फिल्टर और फर्दर डाउन करके देन वी कैन नॉट स्टिक टू ओनली वन कि ये रिट्रेसेस होगा तो ही करूंगा। हमको ये पांचों में एक्सपर्टाइज लेनी होगी, और एक्सपर्टाइज कुछ नहीं है, पांचों में फिल्टर्स अवेलेबल है। करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसेस और लो टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद सपोर्ट, इनिशिएट बाइंग। करंट टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी, लोअर बैंड ट्रेड करके
फ्रेश रेजिस्टेंस इन एक्सी मिलके बाद में अगर स्टॉप एंड यूज टू बाई दैट टू अबो WDP होता हो तो भाई। थर्ड है कि भाई लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले और फ्रेश सपोर्ट से बंद हो तो होल्ड कर लो। फोर्थ है लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा हो और बाद में लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाई कर लो। एक एक लाइन का है, वन लाइनर इट इज नाउ। एंड फिफ्थ इज स्टॉप एंड यूज टू सेल हो तो बेस्ट है सिर्फ इतना जाके देखना है कि डेली में अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग डार्क ग्रीन हो तो WDP के पास ले लो। लेकिन वो हमेशा करना जरूरी नहीं है कि WDP से बढ़ जाएगा। These are the 5 ways of initiating the trade. इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। Then I'll go to the monthly time frame. बस इसके बाहर नहीं जाना चाहिए एक्टिव ट्रेडिंग में। इसके बाहर जाना है तो मैक्सिमम की है ट्रेडेड नहीं फिल्टर करके फ्यूचर स्टॉक्स करेंगे जो कर सकते हैं। फिर 3 बात देखनी है, रिसेंट हाई, करंट टाइम फ्रेम वैलिड बाई और अकॉर्डिंग टू RAR बाई। ये की है ट्रेडेड वाली स्क्रिप्ट लेते हैं तो नो वैलिड बाई देखने की जरूरत है, नो की है ट्रेडेड सॉरी RAR देखने की जरूरत है। की है ट्रेडेड विद डबल ग्रीन स्टार इटसेल्फ सेज कि अकॉर्डिंग टू RAR बाई है, सिर्फ रिसेंट हाई देखना पड़ेगा। Any doubt, any query? Then I'll go to the monthly time frame. बहुत अच्छी बात है, कोई क्वेरी नहीं है तो, क्योंकि मैं वेबिनार इस लेवल पे लेके आना चाहता हूँ। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर इस लेवल पे लेके आना चाहता हूँ और आ चुका है कि क्वेरीज रहे ही नहीं। क्यों क्वेरी रहे भाई? कोई रोज नया 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 स्ट्रेटेजी चेंज होता हो ऐसा तो है नहीं। लास्ट इतने सालों से सिखा रहे हैं तो बाइंग सेलिंग का जजमेंट जो है वो कभी चेंज नहीं हुआ है। जैसे लेते थे वैसे ही है, बस कंप्यूटराइज कर दिया उसको, थॉट प्रोसेस पूरी कंप्यूटराइज कर दी। नो डाउट। सिर आई गो टू मंथली टाइम फ्रेम। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है मंथली टाइम फ्रेम में भी, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम जाने के पहले वीकली में देख लेते हैं। सिमिलरली देयर आर सेलिंग की 2 अपॉर्चुनिटीज है, तो मुझे सेलिंग करना हो तो आई विल गो टू ऑल फ्यूचर स्टॉक्स डेली, किलो, डबल रेड स्टॉक and weekly. There are 6 scripts, but हमने रेड स्टार किलो ट्रेडेड स्क्रिप्ट्स प्रेफर की है, so we'll have to go for only selling scripts and not buying scripts. सेलिंग में हमारे पास RMS लोअर ओपन, ओपनिंग डिफरेंशियल ट्रेड, NTPC एक है। लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग करना होगा एंड RMS लोअर है तो कंपलसरी रिट्रेस हो, उसकी वेट करके फिर लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले तो हम बेच सकते हैं। देयर इज ओनली वन स्क्रिप्ट, जिससे भी हमको समझ में आता है कि बाजार की रुख जो है वो बाइंग की तरफ है, सेलिंग की तरफ नहीं है, क्योंकि काफी स्क्रिप्ट जो है बाइंग सेटअप में आ रही है कंपेयर टू सेलिंग। नाउ फिर से एक बार पूछ लेता हूँ आप लोगों को, कोई क्वेरी? दैट्स वंडरफुल, नो क्वेरीज। only 5 ways of trading single liner, that too fully computerized and filtered now. उसके बाहर ट्रेड करना हो तो बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारा सोचना पड़ता है। बहुत सारा मतलब 1 लाइनर से 10 लाइनर तक जो हम
बहुत सालों से करते आए हैं, बट वो सबको सेट नहीं होता है, तो इतना फ्रेम कर दिया हमने। नो मंथली, यहाँ भी हम डेली में की है ट्रेडेड हो उसके फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल फ्यूचर स्टॉक्स डेली की है डबल ग्रीन स्टार ट्रेडेड, भले मंथली कर रहे हैं बट सेटअप तो मंथली का ही है, क्लू वीकली से ही लेंगे, बट कम से कम डेली में की है ट्रेड करके चल रही हो वैसी स्क्रिप्ट्स। बंधन बैंक, बैंक निफ्टी, कोलपाल, इंडस बैंक, मारुति, रिलायंस और एसआरएफ, ये हमारे रेडर पे है। ये सातों स्क्रिप्ट हम इस वीक थ्रू आउट ट्रैक करते रहेंगे इन वीकली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम के लिए हम देखते हैं कौन कौन सी स्क्रिप्ट इस सेटअप में आ रही है। there are 28 records, बट हमने की है ट्रेडेड स्क्रिप्ट्स प्रेफर की है, इसलिए कंपलसरी हमको सिर्फ बाइंग में जाना होगा। और बाइंग में आईसीएफसी में तो एक ही है, बट नो इश्यू, विल गो बाइंग इन ट्रेंडिंग। 16 स्क्रिप्ट, 16 में लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग 10 स्क्रिप्ट, और 10 में सबसे पहले रिट्रेसमेंट 7 स्क्रिप्ट्स। तो आरएमएसएल, बैंक निफ्टी आरएमएसएल हायर ओपन होके रिट्रेस होकर अब लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले। 12 जून को 10:30 बजे रिट्रेस हुआ था। 12 जून के बाद जब भी लो टाइम फ्रेम में एक्टिव सपोर्ट मिलता है तो हम इनिशिएट कर सकते हैं और फ्रेश सपोर्ट पे होल्ड कर सकते हैं। इस बार सब में एक्सपेंडेड रेंज बहुत ज़्यादा है लो टाइम फ्रेम में। तो हियर इट इज, आरएमएसएल हायर ओपन हुआ था और ओपनिंग क्लाइंबिंग में हमारा आरसी 61.8 था, आरसी 14.6 सपोर्ट था। और 12 तारीख को फ्राइडे को बाजार टूट के खुला, लेकिन आरसी 14.6 19401 के नीचे नहीं गया था, लो ओनली 526, और आरएमएसएल हायर खुल के रिट्रेस होके मिल रहा था। लेकिन हम मंथली टाइम फ्रेम में 401 के स्टॉप लॉस से बाइंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, यही क्वार्टरली टाइम फ्रेम ट्रेड करते रहते हैं, तो बात अगर ये करना है तो वील हैव टू गो टू क्वार्टरली। बट हियर डिसिप्लिन इज कि आरएमएसएल हायर खुल के रिट्रेस होकर अब जब भी लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो हम बाइंग कर सकते हैं। और आज 740 तक अभी भी नीचे ही है, बट लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट, वीकली में सपोर्ट नहीं मिला है। तो वीकली प्लान देख लेते हैं। आईसीएफसी ओपन हुआ है और भले वैलिड बाइंग नहीं है बट डेली में की है ट्रेडेड वाली स्क्रिप्ट भी है, डेली में सपोर्ट मिले तो हम बाइंग कर सकते हैं। फ्रेश सपोर्ट मिला तो हम होल्ड कर सकते हैं। एंड थ्रू आउट द मंथ अगर होल्ड करना हो तो कम से कम वीकली में एक फ्रेश सपोर्ट मिले तो ही होल्ड कर सकते हैं। तो काफी ऊपर आएगा इस वीक, क्योंकि 2200 पॉइंट की रेंज थी। तो कम से कम मंथली में बाइंग में है तो हम एक काम कर सकते हैं इस तरह से, वी कैन शिफ्ट कि चलो मंथली में बाइंग है ना, तो वीकली इंट्रीड भी डेली कर लेते हैं, और डेली में सपोर्ट मिला तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और वीकली में भी सपोर्ट मिला तो होल्ड कर लेंगे। आरसी 23.6 38.2 के पास बेच देंगे। ऐसा कुछ माहौल नहीं है कि 38.2 ट्रेड कर ले इस वीक, नेक्स्ट वीक करेगा। बट थ्रू आउट द मंथ बैंक निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम में आरसी 14.6 टीवीएलएस के नीचे ट्रेड नहीं करता है, तब तक बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ बैंक की ही बात करनी है। और मंथली में आरएमएसएल हायर मिनिमम रिट्रेसमेंट 3 जून को हो चुका था, और 3 जून 10:30 बजे के बाद जब भी वीकली टाइम फ्रेम में बाइंग आई होगी हम देखते हैं कैडिला
3 जून यहाँ पे कोई बाइंग आई नहीं है 3 जून को 360.05 और ये 366.45 जो है 5 जून को ये शायद 450 मिनट्स में होगा, देख लेते हैं। फर्स्ट 50 मिनट्स में मतलब 6 जून वीक में हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला तो हम बाइंग नहीं किए। 30 जून वीक में हमको एक्टिव सपोर्ट मिला, बिगिन टू सेल हुआ। फिर ये दिस वी डोंट बाय एक्टिव रेजिस्टेंस एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय, एक्चुअली फ्रेश सपोर्ट इन आरसी होना चाहिए या तो स्टॉप एंड यूज फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी, यानी कि लोअर बैंड ट्रेड किया हो, फ्रेश रेजिस्टेंस अकर हुआ हो और फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ हो तो हम बाइंग करते हैं। ये क्यों बाइंग नहीं करते हैं? क्योंकि इसका सपोर्ट एफसी में है और क्लाइंबिंग बाय आरसी में है तो स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाता है। बट ये बाइंग तो आ ही चुके हैं, बाइंग आ गई है इसमें 347.65 के स्टॉप लॉस से पूरा वीक बाइंग है और उसमें रिट्रेसमेंट आएगा तो हम बाइंग करेंगे। तो आज देखते हैं कि कैडिला 347 के ऊपर बाइंग ही है, 347.65 के ऊपर, यानी कि if we place 347.65 in between FC 61.8 and FC 100%, तो 344 के स्टॉप लॉस से बाइंग है कैडिला। ICRC एक्टिव रेजिस्टेंस FC 23.6 38.2 आ जाए तो वहीं बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 344 का रहेगा, या तो फिर डेली में सपोर्ट मिले तो बाइंग कर लिया और वीकली के टारगेट में निकल गए। बट थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ इनफैक्ट केडिला जो है हम बाइंग करेंगे, बाइंग में ही रहेंगे। और यहाँ पे आरसी 100% टीवीएलएस आके फिर एक रिट्रेस हुआ है आज 15 जून को 11:30 बजे। तो यहाँ से सेकंड रिट्रेसमेंट के बाद वापस बाइंग आएगी 100%। तो उसका सपोर्ट लोअर से स्टॉप एंड यूज टू सेल केडिला में नहीं होना तो नहीं होगा। तो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। कैनरा बैंक आरएमएसएल हायर खुला, रिट्रेस नहीं हुआ था, सीधा ही बढ़ा था और अब 3 जून को भी रिट्रेस हुआ 3:30 बजे और 8 जून को भी रिट्रेस हुआ 3:30 बजे। और उसके बाद अब 8 जून के बाद आज बाइंग आई है लोअर टाइम फ्रेम में कैन बैंक में, तो हम बाइंग कर सकते हैं। ICFC एक्टिव सपोर्ट तो नेक्स्ट वीक के लिए आपको होल्ड करना हो, क्योंकि मंथली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पूरा मंथ हमको कैरी करना हो, जैसे हमको पूरा वीक कैरी करना हो तो डेली में अपर बैंड ट्रेड करना, फ्रेश सपोर्ट से बंद होना तो हम कैरी कर सकते हैं। इसी तरह से मंथली में हमको कैरी करना हो तो वीकली में फ्रेश सपोर्ट देना और सपोर्ट से बंद होना तो हम कैरी कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीक। बाकी अभी तो हम आज कैनरा बैंक अगर बाइंग किया हो तो कोई गलत नहीं है। हम ऐसे देखते हैं कि 7 स्क्रिप्ट्स में से रिट्रेस कितनी हुई है, तो सातों रिट्रेस हुई है। तो सातों रिट्रेस होकर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही बाइंग करनी है। जैसे मारुति भी है, रिलायंस भी है, SRF भी है, सब रिट्रेस होने के बाद में सपोर्ट से चल रही है। बट नेक्स्ट वीक में अगर हमको कैरी करना हो तो फ्रेश सपोर्ट से बंद होना चाहिए अपर बैंड ट्रेड करके, तो हम पूरे महीने के लिए कैरी कर सकते हैं। सेकंड अपॉर्चुनिटी है रिट्रेसमेंट को छोड़ दे तो लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट, इट इज द सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑलवेज। तो उसमें भी स्टॉप एंड यूज टू बाई, तो स्टॉप एंड यूज टू बाय होके अगर कोई चल रही हो तो एक भी ऐसी नहीं कि जो स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल दोनों है जो हम सेकंड प्रेफरेंस है, बट सिर्फ स्टॉप एंड यूज टू बाय नहीं है। तो इस तरह से 7 स्क्रिप्ट्स रिट्रेसमेंट में भी 7 स्क्रिप्ट्स आती है, लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट में भी 7 स्क्रिप्ट्स आ रही है। तो ऑल दिस 7 स्क्रिप्ट्स में बेस्ट कौन सी है
ये बेस्ट नहीं है आईओसी, क्योंकि स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है ना। तो ये बेस्ट नहीं है, लेकिन ये स्टॉप एंड यूज टू सेल 13 जून के वीक में हुआ था, तो ये बेस्ट तब है जब 79 के पास मिले, डब्ल्यूडीपी के पास, तो बेस्ट है, नहीं तो बेस्ट नहीं है। फिर ये भी मारुति भी मंथली में बेस्ट है, बट वीकली में स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था, एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई भी हुआ है। स्टॉप एंड यूज टू सेल ओके, इसका डब्ल्यूडीपी 5338 है, विच वॉज ट्रेडेड ऑन लोअर साइड, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि डब्ल्यूडीपी बस प्लान्स बेस्ट है कि भाई आरएमएसएल हायर खुला, रिट्रेस भी हुआ और स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ। तो दिस स्टॉप एंड यूज टू सेल ये एक्टिव सपोर्ट वाला स्टॉप एंड यूज टू सेल था, बट फिर भी नो प्रॉब्लम। एक्चुअली स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी हो तो बेस्ट बाई है, ये अबव बीडीपी नहीं है, ये बिलो बीडीपी है। तो उसको रिएक्टिव सपोर्ट वाला हम फिर कभी अलग से समझेंगे, बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप है, अलग ही इसका इंटरप्रिटेशन है, अलग ही वे ऑफ डिफरेंट वे ऑफ ट्रेडिंग है। इसके लिए हम फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल, वही बात करते हैं। एसआरएफ जो है ये भी स्टॉप एंड यूज से सेल हुआ था, लेकिन क्या ये अबो बीडीपी था? अबो बीडीपी मतलब 3350 थ्रू आउट द वीक ट्रेड नहीं किया हो। हाँ, तो अबो स्टॉप बीडीपी स्टॉप एंड यूज टू सेल होके स्टॉप एंड यूज टू बाई हो गया, तो ये कोई 3414 के पास आने की कोई जगह ही नहीं रही, क्योंकि वापस स्टॉप एंड यूज टू बाई हो गया, बट दिस इज ऑल्सो बेस्ट बाई। तो हम मंथली में लिख के रखते हैं 7 स्क्रिप्ट्स, हाउ इट इज बिहेविंग। और आपको इन ट्रेड इनिशिएशन करने में कोई क्वेरी आती हो इन एनी वन ऑफ दिस 5 वे, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये बेस्ट बाई तो आपने निकाल के फिल्टर करके दे दिया, लेकिन ट्रेड इनिशिएट कैसे करें? पांचों में से जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे करें? मैंने समझा दिया है आपको, बट फिर भी आप जब ट्रेड लेंगे उस समय कुछ कुछ क्वेरीज आएगी, तो वो क्वेरीज जो है वो आपको कहनी है। तो उसमें यहाँ पे एक करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसेस, तो हमने वही 7 स्क्रिप्ट लिए जो करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हुई है, बस रिट्रेस होने के बाद जो डेट और टाइम लिखा हुआ है, उसके बाद जब भी लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाई कर लो, एक्टिव सपोर्ट में भी बाई कर लो, और वीकली में अपर बैंड ट्रेड करे तो पूरे महीने के लिए होल्ड कर लो। दूसरा, मंथली में स्टॉप एंड यूज टू बाई हो या वीकली में स्टॉप एंड यूज टू बाई हो, फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी अबाउट डब्ल्यूटीपी, तो वो होल्ड कर लो। तीसरा है सिंपल सपोर्ट, बस एक्टिव सपोर्ट मिला तो इनिशिएट करो, फ्रेश सपोर्ट मिला तो होल मंथ के लिए होल्ड कर लो। और जो भी स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो फ्रेश, लेकिन वो स्टॉप एंड यूज टू सेल अबो बीडीपी होना चाहिए, और वीकली में डार्क ग्रीन होना चाहिए, वैलिड बाय होना चाहिए, तो डब्ल्यूडीपी के स्टॉप लॉस से हम बाइंग कर सकते हैं। दिस आर द 5 वेज, राइट। तो आप, मैं चाहता हूँ कि लॉट लॉट में काम करते हैं बराबर है, लेकिन ये पांचों स्ट्रेटेजी जो है, जो सीनियर पार्टिसिपेंट्स है वो समझते हैं कि करने हम लोगों ने मिल के सबने यहाँ ये 5 पॉइंट तक आना, पूरी शिक्षा सिस्टम को हायर टाइम फ्रेम टोन, करंट टाइम फ्रेम टोन, लो टाइम फ्रेम टोन, जो कुछ भी है उस सबको फुली कंप्यूटराइज कर देना, और बाई वे ऑफ ट्रेडिंग जो है उसको वन लाइनर में लेके आना, और उसको फुली कंप्यूटराइज करके फिल्टर तक करके लाना। और वहां तक हमने अगर कंप्यूटराइज कर दिया हो और इतना सिंप्लीफाई कर दिया हो, तो उसके बाद में दिस इज द एक्सट्रैक्टेड एसेंस ऑफ
शिक्षा सिस्टम नाउ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब यहाँ तक शिक्षा सिस्टम आई है तो वीकली में 7 ट्रेड्स बाइंग में है, मंथली में भी कोइंसिडेंटली 7 स्क्रिप्ट्स ही है बाइंग में। तो जानबूझ के 50 शेयर 100 शेयर 50 शेयर 100 शेयर ये स्ट्रेटेजी में लिया, ये स्ट्रेटेजी में लिया, ये स्ट्रेटेजी में लिया, इस तरह से हर एक को है ना जो लॉट में करते हैं, बट बाकी सब स्क्रिप्ट्स में भी 50 100 शेयर 50 100 शेयर अगर हम करना चालू कर दे, 14 स्क्रिप्ट में अगर हम ट्रेड ले लें तो उससे 2 फायदे होंगे। एक 2 बेनिफिट होगा, एक आप स्केल कर पाओगे कि हम 3-4 ट्रेड ओपन रखते हैं तो 14 स्क्रिप्ट ओपन रखने का है ना स्किल डेवलप हो जाएगा। 14 स्क्रिप्ट, दूसरी स्किल ये डेवलप होगी, स्किल आई एम टॉकिंग अबाउट स्केल, स्किल जो है वो स्केल में कैसे उसको इंक्रीज करे। एक तो 14 स्क्रिप्ट, सेकंड डिफरेंट टाइम फ्रेम, वीकली में भी सेट ऑफ स्क्रिप्ट्स है बाइंग के और मंथली टाइम फ्रेम में भी है। थोड़ा मुश्किल होगा शुरू में, लेकिन 50 100 से रहेगा ना तो टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन आपको उसमें शायद कुछ कमाई नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी, बट कमाई बड़ी ये होगी कि भाई 14 स्क्रिप्ट में ओपन पोजीशन ट्रैक करना आ जाएगा। दूसरी कमाई ये होगी कि टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग वीकली का है तो वीकली में किस तरह से थ्रू आउट द वीक होल्ड किया जाए, लोअर टाइम फ्रेम से सपोर्ट लेके ये आ जाएगा। मंथली है तो कैसे लोअर टाइम फ्रेम वीकली का क्लू लेकर थ्रू आउट द मंथ हम होल्ड कर सके, ये आ जाएगा। इस तरह से सिंपल ट्रेडिंग करके वी कैन इंक्रीज आवर मेंटल कॉम्पिटेंसी। फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी तो बढ़ी जाती है, विच यू आल्सो नो, आई आल्सो नो। जो बढ़ाना है, जो यहाँ से स्केल अप करना है, वो है मेंटल कॉम्पिटेंसी। तो इस तरह से अपने पास अपॉर्चुनिटी है कि इस बार हम 14 स्क्रिप्ट्स करें और जहाँ पे समझ लो कि भाई रिपीट हो रहा है, जिससे बैंक निफ्टी वीकली में भी है, मंथली में भी है, मारुति वीकली में भी बाइंग है, मंथली में भी बाइंग है, रिलायंस और एसआरएफ वीकली में भी है, मंथली में भी है। तो वीकली में भी ट्रेड लो, एक अकाउंट खोल दो, ये वीकली ट्रेडिंग का अकाउंट, एक अकाउंट और खोल दो, ये मंथली ट्रेडिंग का अकाउंट, और दोनों में बैंक निफ्टी करो। वीकली में भी करो, वीकली का पोजीशन वीकली में स्कोर ऑफ कर दो, मंथली का मंथली में कर दो। देखो बहुत अलग ही तरीके की ट्रेडिंग स्किल डेवलप होगी जो आज तक मैं नहीं करा पाया हूँ। आई होप यू कैन बिगिन विथ नाउ 14 स्क्रिप्ट्स। बैंक निफ्टी भले ही 2 पोजीशन हो, मारुति भले 2 पोजीशन हो, एक वीकली का एक मंथली का, लाइक दैट कर सकते हो। और उसमें जो दिक्कत आती है शेयर करो, एग्जीक्यूशन में जो तकलीफ आती है शेयर करो, पूछो, राइट। बट मन से मत करो, अभी बहुत हो गया। हमने सोच समझ के यहाँ वहां से कुछ भी क्लू लेके किसी भी तरह से ट्रेड बैठा दिया, वैसा मत करो अभी। पहले करते थे हम, पर अभी इस ट्रेड को बैठाना है तो ये 5 घर में से किसी घर में बैठाओ। तो बेस्ट घर है पहला वाला और 5वां वाला, और ये सेकंड भी बेस्ट है, स्टॉप एंड यूज टू बाई, सब बेस्ट ही है। मैं प्रेफरेंस दूंगा फर्स्ट रिट्रेसमेंट, सेकंड स्टॉप एंड यूज टू सेल क्योंकि उसमें गेन ज्यादा है, थर्ड इसको दूंगा स्टॉप एंड यूज टू बाई, एंड दिस इज फोर्थ एंड फिफ्थ। समझ के करो तो सबका इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि रिट्रेसमेंट हो चुका और अब लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, मतलब इसको करंट टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करना है, करंट टाइम फ्रेम का टारगेट आना है। और ये फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी हुआ, मतलब उसको डब्ल्यूडीपी ट्रेड नहीं करना है, मतलब बीडीपी तो आना ही है तो बीडीपी भी ट्रेड करना है। और ये तो बहुत सिंपल है कि बाइंग का जजमेंट है, वो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला तो बढ़ना ही है। फोर्थ तो और ज्यादा अच्छा है कि भाई
करंट टाइम फ्रेम में बाइंग का जजमेंट है और लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला था, इट इज अनदर टाइप ऑफ रिट्रेसमेंट ओनली, बट वो रिट्रेसमेंट हम अलग करते हैं, ये सिर्फ रेजिस्टेंस हुआ, और हो सकता है कि ये रिट्रेस भी हो, दोनों में आता हो। तो रिट्रेस वो रेजिस्टेंस मिला और अब जो सपोर्ट मिलेगा तो अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड, एंड ये फोर्थ एंड फिफ्थ सेम है, ये सिंपल रेजिस्टेंस है, ये स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस है, लेकिन है दोनों रेजिस्टेंस ही, फोर्थ एंड फिफ्थ एक ही है। दोनों को अलग इसलिए रखा कि ये एक्टिव रेजिस्टेंस या फ्रेश रेजिस्टेंस होगा, और फिर फ्रेश सपोर्ट मिलता है तो हम बाइंग करेंगे, और ये स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस है, उसको अलग इसलिए रखा कि अगर लो टाइम फ्रेम वैलिड बाई है तो, और डब्ल्यूटीपी के पास आता है तो बाई कर लो, बट बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो स्ट्रेटेजी अपने को हमेशा अप्लाई करनी होगी, हमेशा अडोप्ट करनी होगी, तो ही फिफ्थ अपॉर्चुनिटी है वो ले सकते हैं। तो इस वीक हम ये सातों स्क्रिप्ट जो है हम ट्रैक करेंगे, ऐसे 14 स्क्रिप्ट नहीं हुई, 1 2 3 4 4 स्क्रिप्ट तो कॉमन हो गई 14 में से, तो बाकी बची 14 में से 4 निकल गई, 4 कॉमन है इसके लिए, तो टोटल 10 स्क्रिप्ट है जो हम इस वीक और इस मंथ कंटिन्यूस फॉलो करेंगे, कंटिन्यूस ट्रैक करेंगे। उसमें कहीं भी आपको ट्रेड इनिशिएशन में कुछ कुछ होता हो उस समय तो पूछिएगा, राइट, कोई क्वेरी है तो बोलो, लेकिन रिलेटेड टू दिस ट्रेड सेटअप पेजेस ओनली। हाँ हिरेन बोलो। हिरेन गड़ा। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, कैडिला हेल्थ केयर मंथली बाइंग एंड ट्रेडिंग। सर इसमें एक ही क्वेरी था सर कि फर्स्ट वीक जो हमने कंसिडर किया, जो ओपनिंग पीरियड था, तो व्हाई हैव वी नॉट कंसिडर्ड दिस एज आरएमएसएल हायर? बिकॉज सर वो फर्स्ट वीक में आरएमएसएल हायर भी हो गया था ना। हाँ 2 जून को ही आरएमएसएल हायर हो गया था, उसके बाद जब 3 करेक्ट। जून को रिट्रेस हुआ 10:30 बजे, इसके बाद जब भी वीकली में सपोर्ट मिला बाइंग इनिशिएट करना था। नहीं नहीं, मैं सर देखिए 3 जून ओपनिंग को के बारे में बात कर रहा ओपनिंग हूँ। पीरियड। इसका ओपनिंग आईसीआरसी कंसिडर कर रहा है, तो ये व्हाई इज एक इट नॉट कंसिडर्ड एज आरएमएसएल हायर? नहीं समझा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं सॉरी सर, मेरा कंफ्यूजन है सर, आई एम सॉरी। ठीक है ना, नहीं नहीं, फाइन सर, क्लियर हो गया सर। ओके। एक और तरीका मैं कभी कभार बताता रहता हूँ कि क्वेरी ही नहीं रहे ना वेबिनार में, रहे तो कोई बात नहीं, डेफिनेटली ऑल सिली क्वेरीज आल्सो यू कैन आस्क, बट क्वेरी पूछने का भी एक बहुत बढ़िया तरीका है बिफोर कमिंग टू वेबिनार। जैसे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी आप ऐसे सोच लो कि मैं वेबिनार में क्वेरी पूछ रहा हूँ, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, ट्राई कीजिएगा, उस क्वेरी को आप लिखिएगा, 10 में से 9 बार है ना आपको सिस्टम में से जवाब मिल जाएगा, क्योंकि हिमांशु शाह जो है वो भी आखिर में कहाँ से जवाब देता है वेबिनार में, सिस्टम में से देता है ना। एंड हम सब इतने तो कॉम्पिटेंट हो ही गए हैं कि सिस्टम तो समझ ही रहे हैं, तो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स या कभी भी स्टडी करते हैं कभी कोई भी क्वेरी आती है तो सीधा मुझे पूछने के बजाय, पूछो सीधा मुझे, बट सीधा मुझे पूछने के बजाय इंस्टेड ऑफ दैट आप खुद ही उस क्वेरी को एक बार लिख लो, और ऐसा सोचो कि आप हिमांशु साहब को पूछ रहे हो, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली जवाब मिल जाएगा आपको, और फिर आप ट्राई कर लेना, जो जवाब मिला है ना वही शाम को वापस पूछ लेना, डिट्टो वही जवाब रहेगा जो आपने सोचा था, डिट्टो। ऐसा 4 5 बार करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अरे यार क्या पूछना,
सर यही जवाब देने वाले हैं। हाँ प्रदीप बोलो। Yes, sir. Sir, RMSL higher open and close less than RC38.2 वाला जो सेटअप है, उसमें लास्ट वीक में 6 स्क्रिप्ट था, उसमें से 3 का लोअर बैंड ट्रेड हो गया था, तो उसमें एक है कॉनकॉर। एक सेकंड आता हूँ। RMSL हायर ओपन, और ये सबसे पहले तो ये फ्रेम ट्रेड सेटअप में भी होना चाहिए, या तो कम से कम वैलिड बाय, एस्टैब्लिश वैलिड बाय होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ से तो टूट ही रहा था, तो हियर 18/4 को वैलिड बाय 11/4 को हुआ, फिर उसका पीसीसी भी 395 ट्रेड नहीं किया है, तो ये वैलिड बाय एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। फिर इसका पीसीसी ये 395 860 इसने कभी ट्रेड किया ही नहीं, तो ये वैलिड बाय एस्टैब्लिश हुआ ही नहीं, फॉलो आई ही नहीं, राइट। और इनको हुई ये 398.60 ट्रेड कर लिया, लेकिन कोई फ्रेश सपोर्ट मिला ही नहीं, तो इसमें वैलिड बाई था ही नहीं, फॉलो अप बाई आई नहीं थी। ओके, हाँ पूछ लो क्या क्वेरी है। हाँ ठीक है, तो वैलिड बाई नहीं था, बट जस्ट क्वेरी आप फिर भी मतलब पूछ लेता हूँ। अगर ये वैलिड बाई होता तो हम लोग 392 के पास, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, तो मैं वहां पे ट्रेड बाई कर सकता था। नहीं, आरएमएसएल हायर ओपन होके उसका कंडीशन ही है रिट्रेस हुआ, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने दो। हाँ, तो सर आई नो सीधा भी नहीं देखा, इसीलिए बार बार ये करंट टाइम फ्रेम ट्रेडिंग इनटू मैनेजमेंट और लोअर टाइम फ्रेम से कैसे क्लू लेना वो हम बात करते हैं। ठीक है, समझा। तो सर अभी जब लास्ट, ओके, सिर्फ लास्ट वाला जो सेटअप है 5th वन, उसमें ही हम लोग WDP के पास, मतलब नॉट दिस वन, वो जो चार्ट दिखा रहे थे ना, 5 ट्रेड सेटअप लोअर टाइम फ्रेम पे क्लू लेना है, तो 5th वन पे ही हम लोग WDP के साथ ट्रेड ले सकते हैं विदाउट एनी लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट बेसिकली। वैलिड बाई हो, कंडीशन 1 की भी वो फ्रेम ट्रेड सेटअप में आना चाहिए। ट्रू। और उसमें लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता है, स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर, एंड लोअर टाइम फ्रेम इज ट्रेडिंग विद वैलिड बाई, और WDP के पास आता है लेना चाहिए, और ओवर पीरियड ऑफ 10 पीरियड्स मिनिमम 10 ट्रेड करने चाहिए, 20 ट्रेड करने चाहिए, then only you'll get the result। यही बात हम अभी रिसेंट निफ्टी में करते हैं, तो इट इज नॉट वर्कड आउट। निफ्टी इट वाज नॉट, दो इट वाज नॉट बाइंग सेटअप, बट फिर भी डेली में हम देखे हैं this stop and used to sell was above BDP। मतलब अपना जो कंडीशन है फ्रेश सपोर्ट इन, अच्छा फ्रेश सपोर्ट इन आरसी का कंडीशन नहीं था, तो भी कोई बात नहीं, चलो स्टॉप एंड यूज टू सेल इन आरसी हुआ। जो हम कह रहे हैं कि फ्रेश सपोर्ट इन आरसी एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल इन आरसी अबो बीडीपी, राइट, दैट इज वो WDP के पास हम ले सकते हैं। बट यहाँ पे चलो फ्रेश सपोर्ट नहीं था, स्टॉप एंड यूज टू सेल डायरेक्ट हुआ, तो इसका जो WDP था 10,012, ये इसने होल्ड नहीं किया, 11 एक दिन होल्ड किया 9 जून को, और 10 जून को भी होल्ड किया, बट वहां से कोई बाइंग नहीं आई, और 11 जून को उसने 10,000 लोअर से ट्रेड कर लिया। दो ये वैलिड बाइंग चल रहा है, एस्टैब्लिश होके चल रहा है, जस्टिफाइड बाइंग आई हुई है, सब कुछ है, बट फिर भी 10,012 इज ट्रेडेड ऑन लोअर साइड।
तो ये जो है ये 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 हम अस्यूम करते हैं कि WDP ट्रेड नहीं करेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि फिफ्थ जो है और WDP के पास आप बाइंग कर रहे हो तो दो एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। एक एक्सपर्टाइज जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ निकल जाओ, और सेकंड स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद में भी सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम कम से कम 10-20 ट्रेड लेने की मेंटल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं करना। ट्रू। दिस इज कॉल्ड एक्सपर्टाइज, बाकी और कोई एक्सपर्टाइज नहीं होती है, दो ही एक्सपर्टाइज होती है, एक एग्जिट, सेकंड कंसिस्टेंटली स्टिकिंग टू द सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, कोई एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है, ये एक्सपर्टाइज की जरूरत है। दिस इज कॉल्ड एक्सपर्टाइज। डिसिप्लिन ऑफ कंसिस्टेंसी अलोन इज ए की टू सक्सेस। ठीक है सर, फिर उस कॉनकोर में एक बार जाइए। एक्चुअली जो मेरी क्वेरी थी मैं फिर भी पूछता हूँ क्योंकि ये सिचुएशन आ सकता है, मतलब हाइपोथेटिकल, बट कल के एक सर तो लोअर टाइम हाइपोथेटिकल मिला था, फिर भी हम बाइंग करने की बात कर रहे हैं, और सेकंड यू आर गोइंग इनटू हाइपोथेटिकल। आपके रेस्पेक्ट के लिए मैं कर दूंगा, बट ये हाइपोथेटिकल ट्रेड है ना, फिर हम ड्यूरिंग मार्केट हाउस लेते हैं, मुझे कोई जवाब देने में क्या कितना टाइम लगता है, नो प्रॉब्लम। बट ये हाइपोथेटिकल आप मार्केट में करते हो। फिर हाइपोथेटिकल मतलब क्या, उस सिलसिला का अमिताभ का सॉन्ग सुन लेना, अमिताभ और रेखा का, तू होती तो वैसा होता, तू नहीं होती तो वैसा होता। हाँ, वो हाइपोथेटिकली तो है। आई डोंट माइंड आंसरिंग। यस सर, हाइपोथेटिकल इन द सेंस ये सिचुएशन मुझे लास्ट डे आर्मी से लोअर ओपन हुआ था, इसके बाद ही मुझे लगा कि ये भी सिचुएशन हो सकता है, बट रियल लाइफ जब भी ट्रेड मेरा अगर होगा तो दैट टाइम आई विल गेट कंफ्यूज व्हाट टू डू। तो वो सिचुएशन आने के पहले अगर पूछ लेता हूँ आपको तो आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू हैंडल दैट। ठीक है, पूछो, ना तो बोल नहीं सकता हूँ। इसलिए पूछ रहा हूँ सर। सर 13 जून को आइए फिर से एक बार वीकली में। हाँ, तो यहाँ पे जैसे 388 आया था 11 जून को, उसके बाद मुझे अकॉर्डिंग टू लोअर टाइम फ्रेम सपोज ये थोड़ा आगे बढ़ा और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया था, पर 12 जून को, मतलब ये दिस इज द हाइपोथेटिकल सिचुएशन आई एम कंसीडरिंग कि मैंने ट्रेड लिया कि, बट 12 जून को वो आरएमएस से लोअर ओपन हुआ, मतलब डेली आरएमएस से लोअर ओपन हुआ और वो लोअर बैंड ट्रेड कर लिया, बट डेली में ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड नहीं किया और वो पूरा ऊपर जाता ही रह गया। तो इन दैट बराबर है। हाँ, तो इन दैट सिचुएशन ये उस दिन 12 जून को आरएमएस सॉरी लोअर बैंड वीकली का ट्रेड कर लिया, तो शुड आई स्क्वायर ऑफ, बिकॉज लास्ट डे मैंने ट्रेड ले लिया था लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट मिलके, और शुड आई होल्ड बिकॉज डेली में अभी तक ड्रिफ्टिंग से ट्रेड नहीं किया। बहुत बार बात की है कि आपकी कोई भी बाइंग की पोजीशन हो, फर्स्ट 15 मिनट्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फर्स्ट 15 मिनट्स में हम फ्रेश ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स में अगर लॉस है तो हम लॉस बुक नहीं करते हैं, क्योंकि आरएमएस से लोअर ही ओपन हुआ रहेगा, और आरएमएस से लोअर ओपन हुआ है तो एक फ्रेश रेजिस्टेंस मिले उसका वेट करो, तो लॉस बुक कर लो। जितना टूटना था उतना टूट गया, खुल गया, वो खत्म। अब नाउ वेट फॉर, थोड़ा और लॉस होगा, लेकिन फ्रेश रेजिस्टेंस के लिए वेट करोगे तो 10 में से 7 बार 8 बार बाइंग का जजमेंट हो, आपने सही तरीके से बाइंग किया हो, और बाइंग के ऑपरेट ट्रेड सेटअप में अगर हुए और नेक्स्ट डे आरएमएस लोअर खुल गया तो फ्रेश रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम में नहीं देगा, तो आपको बेल आउट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेक्स्ट बात बोलता हूँ, सुनना नहीं, और सुनते हो तो उसके ऊपर क्वेरी पूछना नहीं, और वैसा करते हो तो तुम्हारे जजमेंट से करना। वीकली टाइम फ्रेम में बाइंग का जजमेंट हो, ऑप्टेड ट्रेड सेटअप में हो, और डेली टाइम फ्रेम में आरएमएस लोअर खुलता हो तो ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल से ले लेना चाहिए।
यस सर, मैं वही सुनना चाहिए था मुझे। ठीक है बाई सर। की पोजीशन अगर मैं स्क्वायर ऑफ नहीं करता हूँ और उल्टा होल्ड करता हूँ, नहीं ले लो ना। आई गॉट माय आंसर। आई कैनॉट ट्रेन यू फॉर दिस। क्यों? फिर एक एक्सपर्टाइज चाहिए कि ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड कर लिया ना तो सेल कर ही देना। स्टॉप लॉस रख के काम करते हो ना तो बहुत सारा है। एक स्टॉप लॉस में अगर एक ही एक्सपर्टाइज चाहिए कि बाइंग का जजमेंट जो है उसी में बाई करूंगा, सेलिंग का जजमेंट उसमें सेल करूंगा, दैट इज द एक्सपर्टाइज। और दूसरा कि भाई फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी मिला लोअर टाइम फ्रेम में, उसके बाद में पोजीशन हाथ में नहीं रहेगी। और पोजिशनल ट्रेडिंग और पैसिव ट्रेडिंग में पीसीएस या पीसीडीएस ट्रेड कर लिया तो पोजीशन हाथ में नहीं रहेगी। बस इतना ही तो है, और क्या है। ऐसा करते रहे तो लाइफ टाइम तक हम बाजार में रह सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा अपने, कभी नहीं होगा, लिसन टू माय वर्ड्स, कभी नहीं होगा कि वी कैन बी आउट ऑफ द मार्केट या अपने को लॉस होगा। ऐसा लॉस होगा कि वी कैन बी आउट ऑफ द मार्केट। एक्टिव ट्रेडिंग में फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी और पोजीशनल ट्रेडिंग में पीसीएस पीसीडीएस। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। रमाकांत बोलो। Sir, my question is in Tata Steel. So it is SNR to sell in RC with higher gap and catching the falling knife in monthly. Oh, wow, what a trade setup. लेकिन है पोस्ट ओपनिंग सेटअप मंथली में? Yes, है सर वो। Open your sell along with higher gap. No, like it is in the all script when we select all the future stock, na. It's a beautiful setup, huh? Higher gap catching the falling knife plus top and used to sell. There are many script in monthly, sir. Yes, yes, yes. वो नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है ना, इसके लिए है धीरे दिया धीरे हुआ टूटता है है, सर। कर रहे, लेकिन मैं पुश नहीं करता हूँ। अवेलेबल है, करना ही चाहिए। बिगनिंग ऑफ द मंथ में हमने एक बार कह दिया था हाँ। स्टॉपिंग इन आरसी हायर गैप विद कैचिंग द फॉलोइंग में दो स्क्रिप्ट है। ये भी स्टॉपिंग यूज्ड टू सेल विद हायर गैप, ये भी बेस्ट सेल है, ये भी सेल है, ये भी 8 स्क्रिप्ट बेस्ट है। ये सब बेस्ट है सेलिंग के लिए, बट उसमें बेस्ट ये है। Sir, in Tata Steel on 10th there was an SNR to sell in monthly, and last week it has closed with resistance. Stop used to sell in RC with 325, target 286 minimum. एंड फिर एक और रेजिस्टेंस भी दे दिया। ठीक है, क्या क्वेरी है? सर लाइक अब लास्ट वीक ये रेजिस्टेंस से क्लोज हुआ है, सो दिस वीक वी शुड लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी for monthly FC 23.6. Yes 30685 भी प्रेस स्टेशन FC and closes with PCR और अबव WDP था, इसके लिए रिटर्न आएगा। आज ICFC से खुला है। ठीक है, ICFC से खुला है तो एक बार अगर आप मंथली हायर गैप एंड कैचिंग द फॉलोइंग नाइफ कर रहे हो तो हो सकता है ये डेली में सपोर्ट देखे RC 23.6 आवे तो बाइंग का ट्रेड मिस करना और वहां पे बेच देना। मंथली का जो रेजिस्टेंस है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? 335। तो मंथली वीकली RC 23.6 आवे
तो मंथली स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं। ओके और ये रिट्रेस आए होगा क्यों, बोलो बोलो, रिट्रेस होगा क्यों? सर ये वीकली 61.8 पे लोअर बैंड था इसलिए। मंथली प्लान का ट्रेड तो मंथली में से रीजन ढूंढो। ये SNR टू सेल BDP के ऊपर है इसलिए। वो तो हायर गैप है तो बीडीपी के ऊपर ही होगा ना। रिट्रेस होगा क्यों? सिंपल सिंपल एकदम बेसिक शिक्षा है। अगर ये है ना अभी अभी कोर्स चलता रहता है और अभी कोर्स कंप्लीट करके गए रहते हैं ना, तो वो उनको ये बात याद रहती है। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ जाते हैं ना, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, माइंड में से स्किप हो जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि सपोर्ट समरी के 5 सिनेरियो जो है वो लिखो। सपोर्ट ब्लॉक जो है वो लिखो। बहुत एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि મને તો બધું આવડે છે, હવે આવું થોડું સાદું સાદું काम कराए। वो सिंपल सिंपल में है ना बहुत बड़ा मिस्टेक होती है। मिस्टेक नहीं, यू नो अर्ली सेलिंग हो जाती है। ये तो अगर ये बात मालूम रहे, ये आपको सपोर्टेशन समरी दिया हुआ है कि ड्रिफ्टिंग सेल हो, RC 14.6% के पास बाजार कैसे बिहेव करता है। एक साथ में 2 ब्रेकआउट पॉइंट लोअर साइड ट्रेड करना इजी नहीं है। कहाँ गया? फर्स्ट अटेम्प्ट में RC 14.6% बोथ ब्रेकआउट पॉइंट लोअर साइड ट्रेड करना इजी नहीं है। इसलिए ट्रेड करने के पहले एक बार मिनिमम रिट्रेसमेंट यानी कि 312 का मैक्सिमम रिट्रेसमेंट RC 100% वेरिएशंस है 325 रिट्रेस हो सकता है और होगा, ऐसा मालूम, ऐसा बोलना आना चाहिए कि हाँ होगा। नहीं तो आप क्या करोगे, कोई भी भाव में बेच दोगे, फिर वो बराबर बेचोगे और वहीं से वो रिट्रेस होगा। प्रॉपर टिकट नहीं होगा लेकिन ट्रेड अनफेवर होगा। तो all these five scenarios is not only exit points, but these are the 5 scenarios, these are the 5 situations from where usually 10 में से 9 बार बाजार रिट्रेस होता है। Yes sir. And I know what I'm speaking. 10 में से yes 9 बार। बट ये सब कैसे याद रहेगा? बैठे महीने में एक बार तो देखो ताकि रिवाइज हो जाएगा पूरा कोर्स। रिवाइज हो जाएगा। यस सर। कभी कभार LKG UKG में जाके बैठने का मजा ही अलग है। जिस स्कूल में हमने स्टडी किया, स्कूल में जाके बैठने को मिले, कितना मजा आवे। दिस इज दैट। यस सर, डेफिनेटली सर। यस सर। ये सब है ना, कहते हैं ना कि सक्सेसफुल पीपल बिकम्स ओवर एम्बिशियस एंड एक्स्ट्रा केयरलेसनेस। तो ये रिपोर्ट को अगर हम ट्रैक करते रहेंगे, एक्टिव सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट, मिनिमम रिट्रेसमेंट, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, दिस 5 सिनेरियोस, सपोर्ट लॉग लिखते रहेंगे, तो एक्स्ट्रा केयरलेसनेस जो बोलते हैं ना, वो कभी नहीं होगी लाइफ टाइम। और जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से मैं हिम्मत करके लिख रहा हूँ, बार बार मैंने अर्ली मॉर्निंग यही मैसेज भेजा है, हम्बल रिक्वेस्ट है, करो, करते ही रहो। आपको बोलते बोलते आप में कितने लोग किए मालूम नहीं, लेकिन मैंने करना चालू कर दिया। ठीक है ना? यस सर, डेफिनेटली सर। हाँ सुबह। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस वेरी मच। यस सर, मेरा एक छोटा सा क्वेरी था कि अगर हम की हाई ट्रेडेड में डबल ग्रीन स्टार में ट्रेड लेते हैं तो
उसमें अगर डेली टाइम फ्रेम में जीएस जस्टिफाइड लाइट ग्रीन हो तो भी चलता है? चलेगा। कैसे चलता है? हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। आरआर देखने की जरूरत ही हाँ नहीं सर। है। हाँ तो फिर मुझे उसका आरआर लॉजिक जानना था। हाई ट्रेडेड हो फिर भी वो लाइट ग्रीन क्यों रहता है? हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, मुझे लॉजिक जानना था कि की हाई ट्रेडेड होने के बावजूद वो लाइट ग्रीन में क्यों रहता है? लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन कैसे आता है सिखाया नहीं है यार। वो एडवांसिंग, डिक्लाइनिंग, ट्रेंडिंग आरआर, नॉन ट्रेंडिंग आरआर है। ओके सर, ओके। कल लेंगे हम, या तो काफी रिक्वेस्ट आएगी तो लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सिखाने से, बहुत ज्यादा देने से कंफ्यूज नहीं हो जाए, बस यही डर रहता है। अगर ट्रेंडिंग आ रहा है, नॉन ट्रेंडिंग आ रहा है, इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लेकिन हम ट्रेडर्स के लिए, चाहे वो लाइट ग्रीन हो या डार्क ग्रीन हो, बाई तो बाई है। हमारे जो टारगेट से, चाहे हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो 5% का, तो 5% इरेस्पेक्टिव ऑफ लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन आता है, और एक्टिव ट्रेडिंग हो तो भी आता है। वो जो इन्वेस्टर लोग हैं, पैसिव लंबा सोचते हैं, लंबा रखते हैं, उनके लिए लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन का डिफरेंस समझना जरूरी है, अपने लिए जरूरी नहीं है। ओके, एक सेकंड। थैंक यू सर। बोलो सुन भाई। जय जिनेन्द्र। हम्म। हम्म। હું અત્યારે એક વેબિનારમાં છું, થોડી વાર પછી વાત કરીએ તો. હું વેબિનારમાં હોઉં કે ન હોઉં, તમે આટલા ગુસ્સામાં છો તો કે હું કેવી રીતે વાત કરું ને તમારી સાથે. તમે શાંત થઈ જાઓ પછી વાત કરીએ. હમ. તમે સમાજના બહુ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ છો, બહુ માનનીય વ્યક્તિ છો, ફાઇનાન્શિયલી બી બહુ સાઉન્ડ છો. હું શું જવાબ આપું તમને, બોલો. હું કઈ જવાબ આપીશ તો તમારું માન ખવાશે. કલાક પછી વાત કરીએ, કાલે વાત કરીએ. હું વેબિનારમાં છું, હું પણ થોડો બિઝી છું. તમારી સાથે વાત કરવાનો વેબિનાર કેન્સલ કરીને બી હમણાં તમારી સાથે વાત કરું, ચલો. પણ તમે કેટલા ગુસ્સામાં છો, શું વાત કરું તમારી સાથે. હમ. હા સાચી વાત છે, તમારી સામે તો હું સોય જેવો જ છું, બરાબર છે. પણ યાદ રાખો, સોય હોય ને, સોય એ છે ને સાંધવાનું કામ કરે, જોડવાનું કામ કરે, ભેગા કરવાનું કામ કરે. તમે છે ને કાતર છો, કાતર. એકમાંથી અનેક કરો, કાપવાનું કામ કરો. મેં કીધું ને તમને વધારે ગુસ્સો આવશે, કારણ કે પછી મને બી છે ને, હું બોલતો જ નથી, એટલે જ કહું છું, નહીં વાત કરો, તમારું માન નહીં રહે. તમે મને સોય કહો તો હું તમને કાતર ન કહી શકું. કાપો જ છો ને, બીજું શું કરો છો. જો તમારી સામે ખરેખર કાંઈ જ નથી, મને ખબર છે. હમ. હમ. ઠીક છે ને, તમારી મરજી છે. તમારી મરજી છે અશ્વિનભાઈ, તમારી મરજી છે. હમ. મારે ફોન મૂકી દેવો પડશે અત્યારે, પ્લીઝ. હમ.
ઠીક છે, હું ફોન મૂકું છું. તમને ખરાબ લાગે સારું લાગે મને નથી ખબર. ફોન તમે કરશો તો હું નહીં ઉપાડું. કાલે વાત કરશું આપણે. થેન્ક યુ. कहाँ थे हम, किसके साथ हैं? हाँ जी बोलो. या गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग. हेलो. हाँ सर, ये Yes, sir. कैनरा बैंक अभी मैं देख रहा था, अभी आप मंथली टाइम फ्रेम में आया हुआ है बाइंग में, ये ट्रेड सेटअप में. अभी लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो हमें लेना चाहिए, लेकिन जब लोअर टाइम फ्रेम में कैचिंग द फॉल होता है तो मैं अवॉइड करता हूँ इसको. तो आज इसको एक्टिव सपोर्ट मिला है तो मैंने इसको बाइंग नहीं किया है. तो आपने 3 तरीके से बताया था, इसमें रिट्रेसमेंट हो तो बाइंग करनी चाहिए कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में. एक आपने कहा था कि अगर आईसीएफसी खुलता है तो इटसेल्फ रिट्रेसमेंट है ये, और या तो एफसी 38 तक पहुंचे, रिस्पेक्ट करे डब्ल्यूटीपी को, तो तुम बाइंग कर लो सपोर्ट में. एक सेकंड रुकना चाहूंगा. आईसीएफसी है तो करेक्शन सेल है. करेक्शन सेल है, ओके. तो इसको इनिशिएट कैसे करेंगे बाइंग से, कल अगर मुझे करना हो कैनरा बैंक में? मंथली टाइम फ्रेम में. हाँ मंथली टाइम फ्रेम में. इसमें है नहीं, इसमें है. आरएमएसएल हायर में है सर. हाँ तो ऑल कर दीजिए, आ जाएगा उसमें कैनरा बैंक. अभी देखा था मैंने स्क्रीन पे आपके. हाँ लाइव अपॉर्चुनिटी बाय करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट. यस. कैनरा बैंक 3 जून को 3 जून को रिट्रेस हुआ है 3:30 बजे. वहां से हम ट्रैक करते हैं. 3 जून 3:30 बजे रिट्रेस हुआ है, और उसके बाद उस वीक में सपोर्ट नहीं मिला. राइट. तो हम इनिशिएट नहीं किए. फिर ये रिट्रेस होके, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम ट्रेडर हूँ हाँ तो मैं 2 तरीके से बाइंग इनिशिएट कर सकता हूँ. एक तो मंथली में रिट्रेस होके चल रहा है तो मंथली के सपोर्ट से ही ले लो. ठीक है. दूसरा, अगर मैंने ऐसा सोचा है कि नहीं लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा तो ही करूंगा, तो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिला है. एंड आज 8 जून को प्रीवियस वीक में फिर सपोर्ट मिला 3:30 बजे. 8 जून के बाद 9 जून को 12:30 बजे सपोर्ट मिला. राइट. हाँ. और ये रिट्रेस भी हुआ. फिर जब डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला हमको तो हम बाई कर सकते हैं, नहीं तो सीधा भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि आई एम ट्रेडिंग मंथली टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट एंड लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड विद सपोर्ट. और यहाँ पे 140 पे माल मिल रहा है, ले लो. बट इसका स्टॉप लॉस जो है बहुत लंबा रहेगा, 88.05 हो जाएगा. तो हम लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने पे बाई करेंगे. और एज यूजुअल वीकली ट्रेडिंग पहले हम इसीलिए सीखते हैं कि मंथली ट्रेडिंग में कहाँ प्रॉफिट बुक करना समझ में आवे. RC 23.6 पे स्क्वायर ऑफ करना होगा. फिर यहाँ से वापस रिट्रेस हो, फिर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो हम बाय करेंगे. लेकिन होल्ड तभी कर सकते हैं जब अपर बैंड ट्रेड करे. जैसे वीकली में मैं के लिए ट्रेड होल्ड कर सकता हूँ जब डेली टाइम फ्रेम में प्रेस सपोर्ट मिलके बंद हो. तो यहाँ पे या तो RC 23.6 पे स्क्वायर ऑफ किया होगा, और करना ही चाहिए. नहीं तो बिगिन टू सेल में तो निकलना ही होगा, बिकॉज देयर वी अंडरस्टैंड कि भी इसको फ्रेश सपोर्ट से नहीं चलना है. इस वीक में 20 जून अब आया सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे. अब आया सर. हाँ अब मैं बाइंग करना चाहता हूँ. अब तो यहाँ वीकली पे में कब बाइंग करूंगा मैं? हाँ 20 जून में यहाँ पे आईसीएफसी खुला है. हाँ राइट. ये फिर से अपलोड होगा डेटा, इसके लिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट वी नो इट इज आईसीएफसी खुला है. कैचिंग द फॉलिंग नाइफ भी है सर इसमें, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ इसको जनरली, इसको इस तरीके का ट्रेड को. तो कैसे इनिशिएट करें लो टाइम? हाँ ओपनिंग पीरियड है मंडे को, तो हम कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में बाइंग नहीं करेंगे. राइट. बट कल लो टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट मिलता है तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे. तो मेरे लिए लो टाइम फ्रेम सर वीकली है मेरे लिए, तो कल भी यही प्लान होगा. अच्छा. मुझे अगर क्विक बाइंग करनी है तो लो टाइम फ्रेम में, जैसे इसीलिए हम वीकली डेली पहले सीखते हैं. राइट. मैं ट्रेड कर रहा हूँ मंथली टाइम फ्रेम. मैं मंथली का ट्रेड, मैं मंथली की बात कर रहा हूं सर. मैं मंथली लेना चाहता हूं ट्रेड. मंथली टोनी ट्रेड कर रहे हैं, बट वीकली में बाइंग करनी है.
तो अब हाँ। मुझे सीधा अगर बाइंग करना है तो 103.35 के ऊपर ही ट्रेड करूंगा, बट आई नो हाउ टू ट्रेड वीकली टाइम फ्रेम इन ट्यून विद डेली आल्सो। हाँ तो यहाँ पे लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही अगर हम बाइंग करते हैं तो अर्ली बाइंग हो जाएगी। राइट राइट सर। और हम पूरे मंथ के लिए होल्ड तब कर सकते हैं जब ये अपर बैंड ट्रेड करे तो और ठीक है सपोर्ट सर। से बंद हो जाए तो। हाँ लेकिन ये कैचिंग द फाइन एफ है, तो यहाँ पे सर मुझे इनिशिएट, जैसे मैं सोच रहा था कि अगर या तो लोअर बैंड ट्रेड कर देगा शायद, या FC हाँ 38 तो तक लो आने के बाद फिर सपोर्ट। डेली टाइम हाँ फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिलता है, हाँ डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिलता है तो क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा। तो लो बिल्कुल, तो टाइम फ्रेम मतलब ट्रेड तो तो जब करने भी दो लो कैचिंग द टाइम। फाइन, हाँ जब भी कैचिंग द फाइन अगर मुझे मिलता है तो मैं डेली को खोल के उसके हिसाब से ट्रेड कर लूं मैं, आप ये कह रहे हैं? हमेशा हमेशा लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने पर ही करोगे ना तो अर्ली बाइंग हो जाएगी। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कैचिंग द फॉलोइंग अलोन। राइट। इसीलिए पहले हम डेली वीकली में है ना मास्टरी करते हैं और फिर हाँ हम मंथली में जाते हैं। और सर इसमें अपर बैंड भी ट्रेड करना, थोड़ा सा मैं लिखा हुआ है कि इसमें अपर बैंड ट्रेड जनरली होता नहीं है कैचिंग द फाइन में, बहुत जल्दी होता है तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। नहीं नहीं उसमें नहीं जाते हैं, कब होता है कब ओके नहीं होता है। यहाँ पे ठीक। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे हम्म, कीप योर माइंड ओपन कि डेली में सपोर्ट मिला तो हम बाय करेंगे, नहीं मिला तो लोअर बैंड ट्रेड करेगा, करने दो। 61.8 ट्रेड करेगा, करने दो। जैसे ही स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ फिर आप हाँ नहीं छोड़ोगे उसको। राइट। मेरा क्योंकि स्टॉप लॉस पूरा रहेगा वीकली का, लोअर बैंड रहेगा स्टॉप लॉस मेरा। आप कौन सा टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो? मैं मंथली करना चाहता हूँ और वीकली को देख रहा हूँ कैचिंग द फाइन लाइफ है, तो आपने कहा डेली देखिए, और डेली में अगर वो फ्रेश सपोर्ट मिलता है तो मैं बाय कर लेता हूँ, और बाय करने के बाद अगर डेली स्टॉप एंड टू सेल हो जाए तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, और अगर मैं बाय नहीं करने के बाद, हाँ नहीं नहीं, वीकली में अगर सपोर्ट से चल रहा हो और हाँ डेली में स्टॉप टू सेल होता हो या रेजिस्टेंस मिलता हो तो इट इज हाँ नथिंग बट रिप्लेसमेंट। नो, राइट परफेक्ट है। इट इज ओनली अक्यूमुलेशन। मैं क्यों तो डेली में मैं रेजिस्टेंस स्क्वायर ऑफ करूंगा? तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ सर, कल मॉर्निंग में अगर ICFC खुल के डेली में और एक्टिव सपोर्ट मिलता है तो मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है। हम्म, और वो ICFC ओपन होकर RC23 तक ट्रैवल करता है वो डेली में, तो फिर मुझे पोजीशन रखनी है नहीं रखनी है मुझे वीकली के हिसाब से फिर? आपको पोजीशन होल्ड तब करनी है। करंट टाइम फ्रेम में हम पोजीशन तभी होल्ड कर सकते हैं, एक ही सेंटेंस। करंट हाँ टाइम फ्रेम में बाइंग की पोजीशन हम तभी होल्ड कर सकते हैं जब लोअर टाइम फ्रेम अपर बैंड ट्रेड करके अलोंग विद बीडीपी बंद हो। ओके ठीक है सर, मेरा क्वेरी ओवर हो गया। एक छोटा क्वेश्चन था सर, RMSL हायर जो होता है इसमें कभी कभी 2+2 WDP ट्रेडेड आता है। कैनरा बैंक में क्वेरी खत्म नहीं हुई है। आई वांट टू एक्सप्लेन यू अच्छा समथिंग दिस ओके ओके कि ओके सर। एक बात दिमाग में रखो, पूरा महीना बाइंग ही करनी है। ठीक है जब जब वीकली में एक्टिव सपोर्ट मिले तो बाइंग करनी है, जब राइट जब वीकली में फ्रेश सपोर्ट मिले तो बाइंग करनी है, जब जब वीकली में स्टॉप एंड यूज टू बाई हो तो बाइंग करनी है। राइट। और वीकली में बाइंग करता हूँ तो डेली को मैं सिर्फ बाइंग के क्लू के लिए मैं देखूंगा, सेलिंग के क्लू के हम्म लिए नहीं देखूंगा। हम्म लास्ट बात, जिस वीक में भी ये फ्रेश सपोर्ट देके बंद हो गया हम्म उसके बाद में मेरा जो स्टॉप लॉस है, जो हाँ बात आपने पूछा लेकिन फिर आपने नहीं पूछा वापस, हाँ मेरा मैं मंथली टाइम फ्रेम टोन में ट्रेड करता हूँ और वीकली अपर बैंड ट्रेड करके बंद हो गया तो स्टॉप लॉस मेरा वीकली मंथली का ही होगा। राइट परफेक्ट है सर वो। मैं वीकली में बाइंग करता हूँ तो लोअर टाइम हम्म फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट देके बंद हो गया। हम्म मैं कौन सी टाइम फ्रेम ट्रेड करता हूँ? वीकली। वीकली का राइट स्टॉप लॉस रहे। लोअर राइट टाइम सर। फ्रेम हम्म क्लू है, हम्म बाइंग के लिए क्लू है। या तो साथ साथ में बाइंग मिल जावे, वीकली करंट टाइम फ्रेम आल्सो बाई, लोअर टाइम फ्रेम आल्सो बाई, तो परफेक्ट बाई हो जाता है इसके लिए। बट हम्म मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो करंट हम्म टाइम फ्रेम का ही होगा। राइट। ये क्लियर है सर, स्टॉप लॉस मुझे क्लियर है। टारगेट भी कहाँ से होंगे? करंट टाइम फ्रेम के ही होंगे। राइट परफेक्ट है। लो टाइम फ्रेम कभी भी टारगेट नहीं हो सकता है, लो टाइम फ्रेम कभी भी स्टॉप लॉस नहीं हो सकता है। राइट ठीक है ना? ठीक है सर। एक और चीज सर पूछना था, छोटा क्वेश्चन है, ये RMSL हायर में सर जब 2+2
WDP ट्रेडर आता है या 3+1 BDP ट्रेडर आता है, तो इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है सर? पहले मैं इतना नोटिस नहीं करता था, पर मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ इसको। ये इस तरीके का जो आता है लिख के इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग में, तो क्या मतलब होता है इसका? किस इसका तरह बिहेव करता है? RMSL हायर जब ओपन होता है तो 3+1 कभी आता है ना, BDP ट्रेडेड, लोअर खुलता है तो 2+2 WDP ट्रेडेड आता है लिख के। वेरी गुड, आपने गौर नहीं किया और किसी ने आज तक पूछा भी नहीं मुझे, इसलिए हाँ सर। मैंने समझाया भी नहीं। तो फिर एक स्पेशल सेशन लेंगे RMSL हायर में हर तरह की सिचुएशन, बट एक सिचुएशन है जो आपको सिखाई गई है, RMSL हायर goes below RC 38.2 TVLS. हाँ It is nothing but retracement, और जब वो लोअर बैंड के पास आता है या तो FC 23.6 तक आता है और फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, तो उसको बाई कर लो, RC 100% टारगेट मिनिमम। यही करता हूँ सर, मैं यही ढूंढता हूँ, ट्रेड मिला तो करता हूँ। जब भी 2+2 ऐसे लिख के आता है तो मैं छोड़ देता हूँ, कि जब मुझे मालूम नहीं तो मैं इसमें फिर हाथ नहीं लगाता हूँ ज्यादा। उसमें सीधा इतने ही सिखा है कि RMSL हायर खुला है तो रिट्रेस हो, लो टाइम सपोर्ट हो तो बाई हाँ। करो। बट उसमें 5 तरह के ट्रेड है। अच्छा। ये फिल्टर आपको दिए 1 साल तक आपके पास था, बट देयर हाँ इज नो क्वेरी ऑन दिस, फिर ये हाँ फिल्टर मैंने निकाल दिए। ये RMSL ओके। हायर एंड लो हाँ RC 38 TVLS, उसका भी कुछ मैसेज है। RMSL हायर एंड हाई ग्रेटर देन RC 100% TVSS, उसमें भी कुछ अलग तरीका है ट्रेड करने का। RMSL हायर एंड क्लाइंबिंग बाय RC 100% हो तो उसका भी एक तरीका है। RMSL हायर हो और 3+1 BDP ट्रेड करके ही खुले सीधा, तो उसमें भी कुछ मैसेज है, उसका भी एक तरीका है, उसका भी कुछ मैसेज है, नॉट ओनली इन दिस वीक बट फॉर सब्सिक्वेंट वीक्स आल्सो। ठीक है सर, ठीक है। बट यू नो आई डोंट नो, फिर मैंने भी सोचा कि क्यों बहुत ज्यादा डीप में जाए, कीप इट सिंपल, RMSL हायर खोले, रिट्रेस हो, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, बाई कर लो। इसको खाली नहीं, अलग से रखा है, मैंने तो इसलिए से यहाँ पे पूछा नहीं, आपको क्योंकि मैं हाँ बाकी चीजें कर नहीं रहा था, तो मेरा शायद मुझे नहीं आता होगा इतना। हाँ पर्सनली कोई भी कुछ भी मत लो। मैं एक अजय यादव से बात करता हूँ ना, तो समझ लो पूरे शिक्षा परिवार से राइट बात करता राइट राइट। हूँ। आई एम नेवर टॉकिंग, मैं कभी किसी को पर्सनल पॉइंट आउट करके कुछ कहता ही नहीं हूँ, तो यस सर। पर्सनल क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे, बस चलेगा। राइट राइट। हम सब एक दूसरे के, कम से कम मैं आप सबके बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूँ, एंड तो किसी भी तरह से जहाँ भी मौका मिलता है ना, वहाँ पे पुश करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मुझे दिखाने की जरूरत नहीं थी, बट वो हाँ हाँ। मेरे भी अंदर उबल रहा था कि चलो तुमने नहीं देखा लेकिन किसी ने नहीं देखा। 1 साल तक था आपके पास, लास्ट अप्रैल को दिया हुआ था, अभी 2 महीने हाँ। पहले निकाला मैंने इसको। ठीक है ना, बट ये तो ट्रेड करना ही है। RMSL हायर इन क्लोज बिलो RC 38.2 TVLS, वैलिड बाई हो, RMSL हायर क्लोज बिलो RC 38.2 TVLS और FC 23.6 और 38.2 पे आ जावे, और जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, RC 100% टारगेट। यस। ठीक है ना, कंसिस्टेंटली करो, ठीक है कुछ सर। भी करो कंसिस्टेंटली करो। ठीक है सर, क्वेरी और हो गई हमारे सर, बैच को 1 साल हो गया सर, आपको बता दूं मैं। ओ वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, पूरा थैंक यू सर, आपको भी। वेरी गुड, वेरी हैप्पी। थैंक यू सर। Anyone else? जाऊं मैं कहीं लीव वेबिनार? Yes, Tejas. Sir, good evening. I'm just seeing one person here and I'm highly motivated. मुझे उनके बारे में कहना है कि उनको इन्फेक्शन हुआ है, मैं नाम नहीं बताता हूँ, न बीमारी का न उनका, बट उनको इन्फेक्शन हुआ है and he's in webinar, you know. What a spirit, no? What a spirit. This motivates me. I'm really happy, and I don't want to announce his name, but बहुत खुश हुआ मैं। बस इसी तरह से है ना, खुद को बहुत जितना ज्यादा ऑक्यूपाइड रखेंगे, जितना ज्यादा एंगेज रखेंगे, जितना ज्यादा मेंटली और इमोशनली
स्ट्रांग रहेंगे, फिजिकल इम्यून सिस्टम से भी ज्यादा मेंटल इम्यून सिस्टम जो है, और इस बाजार में इतनी एनर्जी है कि ये सब बीमारियां कहाँ अपने को छू सकती है। बाजार में इतनी एनर्जी है, मार्केट में इतनी एनर्जी है, प्राइस में इतनी एनर्जी है, सिस्टम में इतनी एनर्जी है, इतने सारे केस स्टडी है। वहां पे अगर हम पूरा ध्यान जो है कॉन्सेंट्रेट कर ले, वहीं पे हम फोकस करें, उसी में हम एक चित्त हो जावे, एकाग्र हो जावे, तो ये सब बीमारी की कोई मजाल नहीं है। जो उसके बारे में कंटिन्यूसली देखता रहता है, सोचता रहता है, उसी बारे में बातें करता रहता है, उसको है ना पहले छूता है। जहाँ पे आप एनर्जी स्प्रेड करोगे, वहां पे जहाँ पे आप एनर्जी फोकस करोगे, वो आपको मिलेगा। So I'm very happy he's in hospital actually, and he's attending webinar. You know, he's hospitalized and he's attending the webinar. I'm really very happy. Yes, तेजस बोलो। कुछ नहीं है, simple flu है। Yeah, sir, good evening. Very good evening. Yeah, patient speedy recovery, sir. सर मेरा कोई निफ्टी में है, निफ्टी डेली। अगर मैं अभी भी उनके साथ ही हूँ, आई एम सो मच हैप्पी। बहुत सीखने जैसा है सबसे। निफ्टी कहाँ पे आऊँ मैं? निफ्टी कोई भी ट्रेड डेली सेटअप में सर। नहीं आ। नहीं सर, मेरा क्वेरी एसएनआर से रिलेटेड है। जब भी अभी आपने एक्सप्लेन किया था तो मुझे एक्चुअली 2 दिन से ये क्वेरी मतलब मेरे माइंड में है, तो मैंने सोचा आज पूछ लूं। पूछ लो। सर आपने बोला था एसएनआर टू सेल जब भी होता है और हम लोग को बीडीपी के सॉरी डब्ल्यूडीपी के नजदीक लेना चाहिए और कंसिस्टेंटली लेना चाहिए फॉर एटलीस्ट 10 सेटअप्स, बराबर है। लेकिन वो एसएनआर टू सेल बीडीपी के ऊपर होना चाहिए था, बराबर है। सेम वे अगर सर एसएनआर टू बाय होता है और अगर वो डब्ल्यूडीपी के नीचे है तो हमको बीडीपी के पास बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, वो मुझे पूछना है। बेचना चाहिए ऑब्वियसली। तो सभी ये 12 जून को जब भी एसएनआर टू बाय हुआ था और वो डब्ल्यूडीपी के नीचे हुआ था। देखो फर्क है इस स्टॉप एंड यूज टू बाय में, दिस आल्सो इज देयर, बट इफेक्टिव जो है, जो रिकॉर्ड हम करते हैं वो ये है, प्रेस सपोर्ट इन आरसी एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी। ये भी है ना, स्टॉप एंड यूज टू सेल प्रेस सपोर्ट इन आरसी नहीं मिला था। ओके, आरएमएसएल हायर ओपन हो तो सीधा स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, तो वो सेकंड चॉइस रहेगा या तो नहीं रहेगा। बेस्ट वही है, जैसे मैं आपको केस स्टडी के साथ दूं तो मुथूट फाइनेंस इसमें fresh support in RC and stop and use to sell in RC above BDP। ये देखो, ये स्टॉप एंड यूज टू सेल है, तो 1 जून को हाँ, और ट्रेंडिंग लेग में बाई भी है, वैलिड बाई भी है। तो दिस इज कॉल्ड Right. फ्रेश सपोर्ट इन आरसी एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल इन आरसी। तो ये 843 के स्टॉप लॉस से है ना बिंदास बाई, आई एम यूजिंग द वर्ड बिंदास बाई। फिर ये 3 जून को एक और स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, देख ही लेते हैं सब के हिसाब से। फ्रेश सपोर्ट इन आरसी एंड देन स्टॉप एंड यूज टू सेल इन आरसी। ये 881 के स्टॉप लॉस से बिंदास बाई है, एकदम बोल्ड बाई है। 4 जून को फ्रेश सपोर्ट इन आरसी नहीं मिला है और स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, तो दिस आई विल नॉट सजेस्ट कि 891 के स्टॉप लॉस से बोल्ड बाई है, दो इट वर्क्स, बट अपने को नहीं करना है। 8 जून को जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी, समझ रहे हो ना, एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल इन आरसी। हाँ समझ रहा हूँ। तो ये मतलब सेम डे पहले फ्रेश सपोर्ट मिलना चाहिए और फिर एसएनआर टू सेल होना चाहिए, तभी आप डब्ल्यूडीपी के पास अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय करने की। 912 के स्टॉप लॉस से बिंदास बाई है, उसी दिन बाई है, देखो उसी दिन आया था, उसी दिन। ओके, 9 जून को फिर स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल। 912 के स्टॉप लॉस से जब भी आ गए
बिंदास भाई है, तो आया 912 के पास 12 जून को। फिर ये 11 जून को स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, fresh support in RC and stop and use to sell in RC. This I am recommending to buy. Stop loss 933. अब यहाँ पे दो stop and use to sell है, तो 912 हम रखेंगे stop loss, lowest one. तो ये सपोज कि भी ये मुझे ध्यान में रहे, ऐसा लिख के रखना पड़ता है। तो ये 912 जो है वो जो 12 जून को आया, तो 9 ये RMS से लोअर ही खुला, तो 912 का next level 900.75 and that happens to be drifting sell also. तो ये ओपन बाय था 900.75 के स्टॉप लॉस से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिवर्सल बाय हो जाएगा, 1019 ट्रेड कर लेगा, ये 1014 ट्रेड कर लेगा। तो ये सर इसका सेल कहाँ पे करना चाहिए, मतलब एग्जिट कहाँ करना चाहिए जो बाय किया उसका? जब तक जो बाइंग पोजीशन है उसका एक स्टॉप लॉस रख दो ना। दो स्टॉप लॉस होते हैं, एक फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी, जैसे अभी फ्रेश सपोर्ट की बात की है वैसे फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी एंड क्लोजेस विद पीसीआर। तो फ्रेश रेजिस्टेंस एफसी मिलती है, स्क्वायर ऑफ कर दो और पीसीआर से बंद किया तो छोड़ दो। दूसरा स्टॉप लॉस है डिपेंड अपॉन योर गट फीलिंग एंड प्रैक्टिस। ये पीसीएस का स्टॉप लॉस रख लो, नए नए पीसीएस मिलते रहेंगे, तो पीसीएस के स्टॉप लॉस रख के बोलो 1019 आएगा, 1019 आएगा, 1019 ट्रेड कर लेगा। And before applying this, you go through the record of from 2018 to 20. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल आ जावे, ताकि हम हाथों हाथ देख सके कि भाई ये स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी है, बिलो बीडीपी है। लेकिन टीम के पास पहले ही बहुत काम है, तो ये नया काम मैं नहीं दे रहा हूँ, तो हम मैन्युअली प्रैक्टिस कर लें। ठीक है सर, तो वो क्वेरी निफ्टी का तो सॉल्व हो गया, लेकिन वो निफ्टी में अगर सेकंड चॉइस है फिर भी अगर अपना बाय पोजीशन रहेगा तो उसके वो बीडीपी के पास एक बार तो निकल जाना चाहिए कि नहीं निकल जाना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूडीपी के नीचे SNR2 बाय था। फ्रेश 444 ट्रेड किया ना, 9944 ट्रेड किया ना, यहीं पे वीकनेस आ गई। 9944 ही आज हाई था। ठीक है। दूसरी बात, जब पीसीआर हम करते हैं तो 10,008 ट्रेड किया हुआ है। हाँ किया हुआ है, तो 10,161 रेजिस्टेंस हो गया। राइट। ये 9754 ट्रेड नहीं किया ना, नहीं वो आरएमएस से लोअर खुला था ना, तो नहीं किया, तो उस दिन उसने 9985 तक की रिट्रेसमेंट दिया। राइट। और ये 9448 ट्रेड करेगा तो, और राइट, अभी 10,161 के रेजिस्टेंस से चल रहा है। और ये 9544 से भी क्यों बढ़ा, अगर हम सिर्फ निफ्टी कर रहे हैं, अगर ट्रैक कर सके तो ईयर 29 मई का पीसीसीबी 9623 ट्रेड किया हुआ था और उसका सपोर्ट था 9494, और 29 मई को पीसीसीबी ट्रेड करके उसके बाद में एक बार भी पीसीसीबी या पीसीआर हायर से ट्रेड करके सपोर्ट से बंद नहीं हुआ। ओके। इसीलिए मैंने ट्वीट में भी लिखा था 9494 के ऊपर है तब तक वो अच्छा है, और ये उसी सपोर्ट से बढ़ा भी। तो इट इज नाउ पेंडुलम बिटवीन 9448, 9448 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो ही टूटेगा, लेकिन नाउ रिसेंटली इट इज ट्रेडिंग विथ व्हाट, रेजिस्टेंस। हमको मान के चलना है कि एक बार तो ये 9448 ऊपर नीचे होके आएगा। जो भी वीकली का वो एक्टिव ट्रेडिंग अलग है कि वीकली में आईसीएफसी ओपन हुआ है, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला है तो बढ़ भी जाएगा, बट अल्टीमेटली न्यू राउंड ऑफ सेलिंग विल बिगिन बिलो 9448
क्योंकि 9448 ट्रेड किया लोअर साइड, तो 29 मई का 9494 है जो सपोर्ट है, वो भी ट्रेड कर लेगा। बट यही बहुत मुश्किल है 9944 हायर से ट्रेड करना। मंथली में बैंक निफ्टी और वीकली में भी बैंक निफ्टी बाइंग में आ रही है, और निफ्टी जो है मैं इसीलिए बोलना अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि इट इज नॉट कमिंग अंडर एनी ट्रेड सेटअप एंड इट इज इन कॉन्ट्रा विथ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मंथली वीकली सजेस्ट बाई, और वीकली में आईसीएफसी खुला है, बस इतना ही बाइंग का सिग्नल है। बट यू नो व्यू बेस्ड बाइंग जो बोलते हैं, वो व्यू बेस्ड बाइंग तो 10,075 10,161.8 ये सब ट्रेड करेगा तो ही आएगा, नहीं तो 9448 भी ट्रेड कर लेगा। ये 9944 की हाई बताया तो वहीं पे मैं एकदम वो हो गया कि ये क्या हो गया, 9944 के नीचे 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 पूरा लोअर बैंड तक आ गया वो। एंड दिस इज नथिंग बट ये आज जो बढ़ा वो भी अपना वीकली का और डेली का जो लोअर बैंड था उसको रेस्पेक्ट दिया। सर आज उसने WDP ट्रेड नहीं कर पाया वो। यस, तो बस वो ट्रेडिंग का मूव था कि डेली टाइम फ्रेम में 9716 से बढ़ गया, वीकली में FC 38.2 से बढ़ गया। इट वाज ए बाउंस बैक, इट वाज नॉट ए बाइंग, it was not a buying, it was a bounce back from WDP or lower band, but this is not called buying. रियल बाइंग तो तब आएगी जब 10,075 या 10,161 ट्रेड करेगा। अदरवाइज जैसे 9448 लोअर से ट्रेड नहीं किया 12 जून को, उस तरह से एनी रिवर्सल फ्रॉम हियर समझ लो कि बढ़ता है वो 10,161.8 से, वहां से एक फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी एंड क्लोजेस विद पीसीआर, तो 9448 ट्रेड करने में टाइम नहीं लगेगा। बट नो, ये सब बातें हैं, इसमें कोई ट्रेड ही नहीं है। राइट सर, ओके, गॉट इट। समझ में आता है, वो कर लिए, वो बात अलग है। देयर इज नो ट्रेड इन निफ्टी सिस्टम से जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें। राइट सर, राइट, थैंक यू सर। चलिए लूज वेबिनार। प्रदीप को वापस क्या क्वेरी आ गई? बोलो प्रदीप। सर स्मॉल थिंग, हम लोग जब ट्रेंडिंग वैलिड बाई होने के बाद जो लाइट ग्रीन होता है उसके बाद बोलता है कि जस्टिफाई होना चाहिए, तो उसका मतलब है उसी दिन का जो पीसीसीबी है वो ट्रेड करना है। यस, उसके बाद जो भी हाईएस्ट पीसीसीबी हो सकता है बीच में कोई स्टॉप एंड यूज टू सेल हो जावे, वो हाँ, रेजिस्टेंस भी। तो उसको ट्रेड करना है। यस, जैसे आरएआर में करते हैं वैसे, कोई नया नहीं है कुछ भी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। फॉलो बाइंग का रूल मालूम है कि भाई हाँ कैसे फॉलो हाँ, बाइंग आती है? इट इज एवरीवेयर। नो सर फॉलो अप बाइंग में हम लोग जब मतलब मेरा पॉइंट ये है कि ऑकरेंस डे का जो पीसीसीबी है वही पकड़ना है या ट्रेलिंग जो पीसीसीबी है वो पकड़ना है? जो हाईएस्ट हो। वो हाईएस्ट हो वही, हाँ ठीक है। Love you all, respect you all, thank you all, trust you all. Bye bye, good night.